यहाँ पर देखने के लिए जाएँ डेली स्मार्ट एंड बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर एमसीक्यू। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग सेंटर सर्विंग द 8 रीजनल मेंबर country of the Hindu Kush Himalaya. First is correct. Second, telling that it is headquartered at Khumbaltar in the city of the Lalitpur, which is located in the Kathmandu Valley of Nepal. ये भी सही है। और थर्ड बोल रहा है, इट्स मोटो इज फॉर माउंटेन एंड द पीपल। नो, इट्स मोटो एंड यू कैन से इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू better for the future and environment of the Hindu Kush Himalaya region. That is their motto, and you can say aim and target and objective. So third is incorrect. 1 and 2 is correct. So correct answer is B, only 2. Next question is question number second, asking that Global Innovation Index released by, we all are knowing, WIPO. WIPO released the Global Innovation Index. So A is the correct answer. Next question, question number third, asking that consider the following statement. The United Nations Framework Convention on the Climate Change was adopted in the 1992 at the Rio Earth Summit. That is very correct statement. Second, telling that UNFCCC established a framework for action to stabilize concentration of the greenhouse gases in the earth atmosphere. ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है, framework set non-binding limit on the greenhouse gas emission for individual country. ये भी सही है। Nearly all the member state of the United Nations have ratified the convention. फोर्थ भी सही है। तो सभी सही है। तो आपका हो जाएगा डी। D is the means of all the four is correct. Consider the following statement. Next is a consider the following statement. Climate Change Performance Index track country effort to combat climate change and is published annually by UNEP. No, it is not published by annually by UNEP. It is published by German batch. So first is incorrect. Second statement telling that UNFCCC can impose a penalty if a country fails to meet internationally determined contribution under the Paris Climate Pact. ये भी incorrect है. There is no penalty if they fail to meet the national determined contribution. So एक एंड दोनों incorrect है. यहाँ correct पूछ रहा है तो आपका D आंसर होगा. Next question number 5, asking that consider the following statement. He was given the title Lion of Punjab. ओके, सही है। दो बोल रहा है, ही वाज नोन फॉर ही जस्ट एंड सेकुलर रूल। ये भी सही है। ये भी ठीक है भाई। आगे क्या कर रहा है, ही टर्न हरि मंदिर साहिब एट अमृतसर into the golden temple by covering it with the gold. ये ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, अबोव स्टेटमेंट रिफर टू किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए में कर रहा है अमरिंदर सिंह, 2 में कर रहा है बंदा सिंह बहादुर, सी में कर रहा है महाराजा खरक सिंह एंड डी में कर रहा है रंजीत सिंह। तो कौन सही आंसर होगा यहाँ, रंजीत सिंह है जो ये तीनों, जिसे ही वाज गिवन द टाइटल लायन ऑफ पंजाब, ही वाज नोन फॉर हिज जस्ट एंड सेकुलर रूल, ही टर्न हरिमंदिर साहिब एट अमृतसर into the golden temple by covering it with the gold. तो ये रिलेटेड जो स्टेटमेंट है रंजीत सिंह से है, तो रंजीत सिंह मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द mRNA वैक्सीन। क्या कर रहा है, mRNA वैक्सीन यूज ए स्मॉल पीस ऑफ द वायरस जेनेटिक मटेरियल। 2 में कर रहा है mRNA वैक्सीन वर्क बाय डायरेक्टली इंसर्टिंग वायरल प्रोटीन इनटू द बॉडी एंड mRNA वैक्सीन रिक्वायर यूज ऑफ एन एजुवेंट। ये इनकरेक्ट है भाई, ये नहीं एजुवेंट रिक्वायर करते। mRNA वैक्सीन हैव बीन सक्सेसफुली यूज टू डेवलप कोविड वैक्सीन। तो ये है, और एक ये वाला इनकरेक्ट है। एक तो
4 तो सही है, 1 भी सही है। आपका जो mRNA वैक्सीन वर्क बाय डायरेक्टली इंसर्टिंग वायरस प्रोटीन इनटू द बॉडी, ये इनकरेक्ट है। डायरेक्टली नहीं, दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू डेवलप द प्रोटीन। ओके, सो सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट, सो ओनली 2B इज द करेक्ट आंसर होगा। Next question, question number 7, asking that consider the following statement about the cosmic radiation. पहला कह रहा है cosmic radiation is a form of electromagnetic radiation। ये नहीं, ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सेकेंड बोल रहा है कॉस्मिक रेडिएशन इज मेड अप ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल। थर्ड बोल रहा है कॉस्मिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय सुपरनोवा एक्सपल्सन। फोर्थ बोल रहा है कॉस्मिक रेडिएशन कैन काउज कैंसर। तो फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड सबके सब सही है, ओनली थर्ड है जो फर्स्ट है जो इनकरेक्ट है। मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओनली 3। कह रहा है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आस्किंग दैट A state of the climate in Europe 2022 report is produced by, कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन यूरोप 2020 रिपोर्ट इज प्रोड्यूस बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेरी लेक इज लोकेटेड इन, कालेरी लेक कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। दे आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। Next question, which one of the following is a very significant aspect of the चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड यहाँ दिया है, कह रहा है कौन सा एस्पेक्ट है जो आपका चंपारण सत्याग्रह से सही है? पहला स्टेट में पहला ए ऑप्शन गिवन, एक्टिव ऑल इंडियन पार्टिसिपेशन ऑफ लोअर स्टूडेंट्स वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन द नेशनल मूवमेंट, joining of the peasant unrest to the India's national movement, drastic decrease in the cultivation of the plantation crop and commercial crop, joining of the peasant unrest to the India's national movement means C is the correct answer। सी करेक्ट आंसर है, जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोट। क्या कर रहा है? ये बोट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज प्रोग्राम टू डू सर्टेन टास्क ओवर द इंटरनेट। ये सही है, ये सही है। अभी 2 में कर रहा है बोट ऑफन इमिटेट और रिप्लेस ए ह्यूमन यूजर्स बिहेवियर, ये भी सही है। 3 में कर रहा है बोट कैन बी मैलिशियस as well that can break into the user account and scan the web of the contact information for sending a spam, ये भी सही है। तो आपका सही हो जाएगा सी, ऑल द 3 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आस्किंग द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कंसीडर करने के लिए बोल रहा है? पहला बोल रहा है लॉन्ग पीरियड एवरेज इज एन एवरेज लेवल ऑफ रेनफॉल रिसीव बाय एन एरिया एंड कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द डाटा ओवर मेनी डिकेड, ये सही है। 2 करा इन इंडिया मानसून इज कंसिडर नॉर्मली ओनली व्हेन द रेनफॉल इज अबव 100% of the long period average। No, that is not 100, that is between the 96 to 104, that is the long rainfall normal consider normal। And in the last 10 years the onset of the monsoon over Kerala has not happened on the normal date। No, that is not in the last 10 years, in last 10 years one times that is happened। Okay, so that is the one, and one is correct, second and third is incorrect, so only A is the correct answer। Next question, question number 13, asking that consider the following statement। क्या कह रहा है? रिडक्शन इन मोर्टेलिटी ऑलवेज लीड टू ए राइजिंग पॉपुलेशन, always make this statement incorrect। Next, telling the total fertility rate is the number of the baby an average woman bear over her lifetime, ये सही है। थर्ड बोल रहा है पॉपुलेशन कैन कीप ग्रोविंग इवन विद द टोटल फर्टिलिटी रेट फॉलिंग, ये भी सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, बी ओनली 2 स्टेटमेंट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आस्किंग दैट under the RBI Act 1934, if the central bank failed to meet the inflation target for the 3 consecutive quarter, it is required to provide the following information to the government। Reason for the failure to achieve the inflation target:
सही, ये भी एक कह सकता है। दूसरा है रेमेडियल एक्शन परपोज टू बी टेकन, ये भी है। तीसरा करा एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव हो, ये भी सही है। तो एक दो तीन, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका डी हो जाएगा, सो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रोटरडम कन्वेंशन ऑफन सीन इन न्यूज रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज द प्रिवेंशन ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। बी में बोल रहा है प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टेट पार्टी इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द सर्टेन हजार्डर केमिकल। सी इज टेलिंग दैट प्रोहिबिट ऑफ द यूजेज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन बाय द मेंबर कंट्री। थर्ड टेलिंग दैट कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो ये यहाँ पर बी है, जो प्रमोट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टेट पार्टी इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द सर्टेन हजार्डस केमिकल, ये वाला है जो सही आंसर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 asking that consider for instance a genetic engineering appraisal committee is an apex technical body charged with evaluating proposal for testing genetically modified seed in the India, ये सही है। सेकेंड बोल रहा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। No, that is not the Ministry of Farmer and Agriculture Welfare. They are the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, you can say. That is the आगे करा थर्ड बोला एट परजेंट cotton and mustard remain the only two transgenic crop that are being commercially cultivated in India. Not the mustard, only the cotton. Cotton, cotton is the not one master. Master is become incorrect. You know, only cotton remain the only the transgenic crop that are being commercially cultivated in India. तो दो एंड तीन इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली अपना हो जाएगा, ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर फॉर इंस्टेंस में द यूनियन गवर्नमेंट imposes a stock limit on the food grain that can be held by the trader, wholesaler, retailer, big chain retailer and process। और आगे ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर मुझसे छूट गया लिखना, यहाँ पर होगा द ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन स्कीम टू यूनियन गवर्नमेंट ऑफलोड फूड ग्रेन from the center pool to private trader bulk buyer through a e-auction to moderate its price। थर्ड में है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर फूड ग्रीन आर एक्सेसिबल एट ए रीजनेबल प्राइस टू द वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी सही है। तो मुझे तीनों सही स्टेटमेंट लग रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा जो होगा 18 होगा। कंसीडर फॉर इंस्टेंस में रिगार्डिंग द मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग, क्या कह रहा है? मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग मीन्स ए क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट विच कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो द पीरियड फिक्स, ये सही है। सेकेंड बोल रहा है इन इंडिया सच सेंटेंस आर प्रेस्क्राइब फॉर सेक्सुअल ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये भी सही है। थर्ड बोल रहा है व्हेन द लेजिस्लेचर हैज prescribe a minimum sentence without discretion, the same can be reduced by the court. No, that cannot be reduced by the court. So third is incorrect, first and second is correct. Only B is the means only two is the B is the correct answer. Next question: surplus in current account in India can happen when? कब हाइपन होगेन कब होगा? कारा रिकॉर्डेड इनफ्लो ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नहीं भाई ये तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। नेट सर्विस रिसीप इंक्रीज सिक्वेंशियल, ये सही है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ट्रेड डिफिसिट, ये भी सही है। उसके बाद ग्रोथ इन द, चौथा होगा ग्रोथ इन द रेमिटेंस बाय द इंडियन एम्प्लॉय ओवरसीज। तो तीन गो स्टेटमेंट, पहला दूसरा तीसरा सही है। पहला सॉरी दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला इनकरेक्ट है, तो ओनली थ्री मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एनवायरमेंटल लीडर फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बाज इस्टेब्लिश बाई, कौन इस्टेब्लिश करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बी में दिया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी में दिया इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड डी में दिया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। डी वाला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी इज द करेक्ट आंसर। Here I would